فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، فوج کسی جماعت کی مخالفت نہ ہی طرفدار۔ فوج کو بحیثیت ادارہ کسی بھی سیاسی یا ذاتی مفاد میں استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کسی مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھانے پر خود احتسابی کا عمل حرکت میں آئے گا۔ فوج کے احتساب کا عمل شفاف، سخت اور کڑا ہے۔ امید ہے باقی ادارے بھی خود احتسابی کا عمل اپنائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس۔ فیض حمید نے سیاسی عناصر کی ایما پر حدود سے تجاوز کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ثابت ہوئی، ان کے خلاف کارروائی ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی سے متعلق سوال کو مفروضوں پر مبنی قرار دے دیا۔ واضح کر دیا کہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ کسی نے بھی آرمی ایکٹ کے تابع کسی فرد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تو قانون خود راستہ بنائے گا۔ بلوچستان کی ترقی میں بیرونی عناصر رکاوٹیں ڈالنے کے در پہ ہیں۔ ان کا اسلام، انسانیت اور بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا ان کی مایوسی کی عکاسی کرتا ہے۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو واضح پیغام ہے، انہیں ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کو توڑنا ہوگا۔ ترجمان افواج پاکستان کی نیوز کانفرنس۔ کہا، بلوچستان میں احساس محرومی کا بیانیہ بنایا جاتا ہے، حقائق بیانیوں کے برعکس ہیں۔ بلوچستان میں 73,000 طلبہ اسکالرشپس پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کم آبادی اور زیادہ علاقے کی وجہ سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ترجمان افواج پاکستان نے معاشی استحکام کے لیے امن و امان کی بہتر صورتحال ناگزیر قرار دے دی۔ واضح کر دیا کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ مضبوط انتظامی ڈھانچے کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ فوج نے اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کی، ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں 100 ارب روپے جمع کروائے۔ فوج اور اس کے اداروں نے 360 ارب روپے کے ٹیکسز ادا کیے۔ وزیر اعظم کی آرمی وار گیم کے اختتامی اجلاس میں شرکت۔ آرمی چیف، اعلیٰ عسکری حکام اور وفاقی وزراء بھی شریک۔ شہباز شریف کو وار گیم اور پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کا پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ خطے میں استحکام کے لیے پاک فوج کا کلیدی کردار ہے۔ شہباز شریف کا خطاب، ملکی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ فوج سیکیورٹی چیلنجز سے باخبر اور نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ عسکری قیادت کا ملک کے خلاف کسی بھی جارحانہ عزائم کو ناکام بنانے کا اظہار۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی لاہور میں کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے گھر پر آمد۔ لواحقین سے اظہار تعزیت۔ دہشت گردی کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آخری دم تک کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ کیپٹن محمد علی قریشی گزشتہ دنوں بلوچستان میں شہید ہو گئے تھے۔ وفاقی حکومت کا بلوچستان میں فوج، سول آرم فورسز اور حکومت کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ۔ کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی، ذرائع کا دعویٰ۔ بلوچستان جل رہا ہے، کسی کو فکر نہیں۔ اختر مینگر اپنا استعفیٰ واپس لے لے، عمر ایوب کی اپیل۔ بانی پی ٹی آئی کا کسی بھی صورت فوجی ٹرائل نہیں ہونے دیں گے۔ دعویٰ کیا کہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کی شمولیت کے کوئی ثبوت نہیں، ثبوت موجود ہیں تو سامنے لائے جائیں۔ اپوزیشن لیڈر کا مطالبہ، بجلی سستی کرنے کا اعلان کر کے اگلے ہی روز مہنگی کر دی گئی، حکومت پر کھل کر تنقید۔
अख्तर मैंगल बैरून मुल्क रवाना, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, बलूचिस्तान के अवाम से माफी मांगें, तस्लीम करें आपने उनके दिल दुखाए, मेरे ज़मीर ने मुझे इस्तीफा पर मजबूर किया, अलविदा पार्लियामेंट, शायद हम उस वक्त मिले जब कानून की हुक्मरानी कायम हो, BNP सरबराह का तैयारे से ट्वीट। बानी PTI ने मुज़ाकरात को जरूरत करार दे दिया। बलोचिस्तान में पुतले बिठाने से मसाइल बढ़ गए, हालात हाथ से निकल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI ना होती तो वहां भी इतना ही बहरान होता। इस बार मुल्क में तारीख की सबसे कम सरमायाकारी आई, हुक्मरान कर्ज पर कर्ज ले रहे हैं, महंगाई का नया तूफान आने वाला है, मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है। बानी PTI की अडयाला में सहाफियों से गुफ्तगू। इस्लामाबाद इंतजामिया का PTI को 8 सितंबर के जलसे के लिए NOC जारी, इंशाअल्लाह जलसा मुलतवी नहीं होगा और तारीखी होगा, पार्टी बानी इस्तिकामत से भरपूर हैं। अली मोहम्मद खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू, वाज़ेह किया आज हर कोई एहतजाज कर रहा है, बलूचिस्तान के हालात भी देख लें, अख्तर मेंगल के इस्तीफे को एक शख्स का इस्तीफा ना समझा जाए, हुकूमत अख्तर मेंगल समेत तमाम बलोचों से बात करे। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को राहदारी जमानत दे दी, 21 सितंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर को तमाम केसेस में मुतालिका हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में पेश होने की हिदायत। 2 रुकनी बेंच जस्टिस अरशद अली और जस्टिस जाहिद खान ने केस की समाअत की। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस में गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। गवर्नर का नाम नहीं लेना चाहता, पर्ची पर बैठा शख्स के बारे में क्या कहूं, शायद फैसल करीम कुंजी गवर्नर हाउस में रात गुजारने रास नहीं आता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, वाज़ेह किया वो एतमाद के वोट के लिए हाजिर हैं, जलसा होगा और हर सूरत होगा, किसी ने मना किया तो फिर देखेंगे। अली अमीन गंडापुर का 2 टोक ऐलान। बानी PTI पर पंजाब भर में 45 मुकदमात दर्ज और एंटी करप्शन की 2 इंक्वायरीज ज़ेरे इल्तवा हैं। सरकारी वकील ने बानी PTI पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत पर आज फैसला नहीं सुनाया गया, महफूज फैसला रेफरेंस के फैसले के साथ सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की, बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया, समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। डंडे के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते, 77 बरस में कई ऑपरेशंस हुए लेकिन हल नहीं निकला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बलोचिस्तान के लोगों को एतमाद में लेने का मुतालबा, हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर अमल न करने पर सियासी मज़ाहमत आगे बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया। MKM पाकिस्तान का कराची में के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर मुजाहरा, असम्बली अरकान और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत, आवाम को कदम कदम पर रुस्वा किया जाता है, 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जाती है, फारूक सत्तार का खिताब, के इलेक्ट्रिक ने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो फिर कराची के अवाम आज़ाद हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का 2 टोक पैगाम। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के भाई इकबाल जावेद बाजवा ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के डिप्टी स्पेशल मैनेजर बर्मिंघम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। FA का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर तहकीकात का सामना था। पंजाब के स्कूलों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया, यौमिया 4 लाख बच्चों को दूध फराहम किया जाएगा। DG खान के स्कूल से मुहिम का इफ्तिताह। मरियम नवाज का सूबे के तमाम स्कूलों में खाना भी फराहम करने की ख्वाहिश का इजहार। सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब का सोचते हैं, तुलबा की तालीम और सेहत के लिए फिक्रमंद रहते हैं। मरियम नवाज का मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
तहरीक इंसाफ के चंद लोगों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा भर में बल्दियाती निजाम मफलूज है। 2.5 साल हो चुके बल्दियात तरक्याती काम से महरूम है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में नालों की सफाई का इख्तियार भी कमिश्नर पेशावर को दे दिया गया। अगर मुश्किलात हैं तो कानून लाएं और इस निजाम को खत्म कर दें। मेयर पेशावर जुबैर अली की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पेशावर में बिजली और गैस के भारी भरकम बिलों से छोटे कारोबार बंद होने लगे। बिजली के 20 और गैस के औसत 35,000 के बिलों ने छोटे होटल मालिकान को चकरा कर रख दिया। कई ने होटलों पर ताले लगा दिए। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स ने 800 से ज्यादा अशिया की कीमतों में 10% तक की कमी कर दी। घी और कुकिंग ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया 60 रुपए तक सस्ती हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स ने इजाफी अखराजात कम करने के लिए सैकड़ों गार्ड्स फारिग कर दिए। स्वीपर, लोडर्स और पैकिंग लेबर्स को भी फारिग करने का फैसला। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा का कश्मीर के हवाले से बयान यकतरफा करार दे दिया। कश्मीर की हक खुद इरादियत का फैसला कश्मीरी अवाम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और बांग्लादेश की मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम के लिए मुफीद करार। इसराइल के मगरबी किनारे में फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के कैंप पर हमलों की शदीद मसम्मत। सलामती काउंसिल से सहूनियों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को रुकवाने का मुतालबा। मेरे दौर में ईरान इक्तिसादी तौर पर तबाह था। तेहरान के पास हमास और हिजबुल्लाह के लिए रकम नहीं थी। सदर होता तो इसराइल पर 7 अक्टूबर वाला हमला न होता। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदा सूरत हाल भी पैदा नहीं होती। साबिक अमरीकी सदर की गुफ्तगू। पाकिस्तान में खतरनाक मॉन्की पॉक्स के वेरिएंट का कोई केस नहीं आया। पुराने वेरिएंट के 5 केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुताबिक सिस्टम अलर्ट और फ्लाइट्स की स्क्रीनिंग का निजाम फाल है। टेस्टिंग का निजाम और किट्स भी मौजूद हैं। अभी तक सेफ जोन में है। वजीर कानून आजम नजीर तारक का सेनेट में इजहार ख्याल। गुजरावाला के सरकारी स्कूल में 5 तालिबात से ज्यादती का इंकशाफ। तमाम लड़कियों के मेडिकल टेस्ट में ज्यादती साबित हो गई। पुलिस ने उस्तानी के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। क्रिकेट बोर्ड ने पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज यूएई मुंतकिल करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराये के मुताबिक मैचेस रावलपिंडी और मुल्तान में रखे जा सकते हैं। कराची और लाहौर में तामीराती कामों के बायस मैचेस नहीं होंगे। गिलगित बाल्टिस्तान में रंगारंग जश्न पाकिस्तान पोलो टूर्नामेंट का आगाज कल होगा। 15 टीमें हिस्सा लेंगी। पहली बार चित्राल की टीमें भी शरीक होंगी। तमाम मैचेस मसनूई रोशनियों में खेले जाएंगे।